دل میں یہ تھا کہ اپنے ملک میں رہوں، یہاں کی زندگی مجھے اچھی لگتی ہے۔ وہ بھی تو میٹھی جنت تھی نا۔ وہ دکھاوے کے لیے تو بہت اچھی ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں۔ والدین اگر اجازت چاہیں تو پوچھ لوں کہ وہ ہندو مذہب کے تھے؟ میرے والد جو تھے وہ ہندو تھے۔ کہاں سے ہجرت کی آپ کے والد نے؟ میرے والد نے رجوری جموں کشمیر سے بلونگ کرتے ہیں۔ جب والد صاحب اپنے آبائی گھر گئے تو یقیناً روئے ہوں گے۔ سر وہاں کی میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں۔ یورپ آپ کے دل میں مقام نہ بنا سکے، اس کی وجہ میرے والد تھے۔ میں نے اکثر کہا اور لوگوں سے بات کی کہ میں نے پاکستان کیوں چھوڑا۔ آج ہم بات کریں گے کہ لوگوں نے میٹھی جنت برطانیہ اور یورپ کو کیوں چھوڑا اور پاکستان میں آ گئے۔ آج ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی مٹی سے، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک مثال آپ کو دکھاؤں گا۔ تو چلتے ہیں، ایسے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یورپ کو چھوڑا اور یہاں پہ آئے اور پھر کیا کیا، اور بڑی دلچسپ کہانیاں ہیں جن کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے، انسانی نیچر سے اور کاروبار کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام سر، کیا حال ہے؟ میں خیریت سے ہوں۔ ویلکم جی، خوش میں نے لوگوں کو دکھانا تھا کہ لوگ پاکستان کو تو انہوں نے چھوڑا جی جی سلسلہ روزگار کے لیے، پاؤنڈ اور یورو کمانے کے لیے، صحیح۔ لیکن آپ ان میں سے ایک ایسے ہیں جنہوں نے وہاں یورپ کو چھوڑا، تو اس پہ بات کی جائے آج۔ انشاءاللہ، کیوں نہیں، ضرور چلتے ہیں۔ چلیں۔ یہ کافی موٹر سائیکل نظر آ رہے ہیں۔ جی جی، یہ میرا بزنس ہے جی، یہ میری آمدنی ذریعہ ہے۔ مجاہد آٹوز جی جی۔ کتنے کا ہے ایک؟ یہ سر مختلف ہیں، 2,85,900 سے شروع ہوتا ہے، اس سے نیچے لاکھ تک آتا ہے۔ یہ 6 برانڈ ہے یہ ہمارے پاس، تو مختلف لوگ آتے ہیں لے کے جاتے ہیں۔ چھوٹے سے تھے، ہالینڈ گئے تھے؟ میں 12 سال کی عمر میں ہالینڈ میں چلا گیا تھا۔ پھر برطانیہ میں بھی رہے؟ برطانیہ میں تھوڑا عرصہ رہا ہوں، میں ہالینڈ میں زیادہ رہا ہوں۔ اچھا، وہاں کیا کیا؟ وہاں میں پڑھا بھی ہوں، پھر واپس بھی آیا ہوں، پھر گیا ہوں، پھر کام کیا ہے، پھر چھوڑ کے یہاں آ گیا ہوں۔ کیوں چھوڑا؟ بس دل میں یہ تھا کہ اپنے ملک میں رہوں، یہاں کی زندگی مجھے اچھی لگتی ہے۔ وہ بھی تو میٹھی جنت تھی نا۔ وہ دکھاوے کے لیے تو بہت اچھی ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں۔ ہم لوگ تو گئے تھے روزی کمانے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں گئے تھے کہ چند پیسے لے کے واپس آ جائیں۔ کس کی وصیت تھی بیٹا واپس آنا ہے؟ یہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ اپنا ملک نہیں چھوڑنا۔ میں آپ کے والد اور آپ کے نانا جی کے حوالے سے بھی پوچھ سکتا ہوں نا؟ بالکل، کیوں نہیں، کیوں؟ آپ کے دفتر میں بیٹھے؟ بالکل، چلیں۔ تصویر لگی ہے پیچھے، مجاہد راجہ غلام حسین مرحوم۔ جی، یہ میرے نانا مرحوم ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ انہی کے نام پر بزنس ہے، انہی کے نام سے ہماری پہچان ہے، اسی لیے اس کو مجاہد آٹوز کہتے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے۔ یہ جو لیگسی یہاں تک پہنچی، یہ انہی کے ہاتھوں کی لگائی ہے، جب کسی دور میں پاکستان بننے سے قبل بھی ایک ہوٹل تھا ان کا؟ یہ مجاہد ہوٹل کے نام سے مشہور تھی، ہمارا ہوٹل تھا۔ میرے والد صاحب ان کے پاس رہتے تھے، ہماری بیکری بھی تھی۔ میرے نانا اور میرے والد نے بہت محنت کی اور اسی نام کو ہم لے کر آگے جا رہے ہیں، آگے بڑھے۔ بڑا کم میں نے زندگی میں دیکھا کہ کوئی باپ دادا کے بجائے نانا کا نام آگے لے کے بڑھے۔ نانا حضور شخصیت ہی ایسے تھے، غریب پرور تھے، جو ان کے جاننے والے لوگ ہیں دائیں بائیں، کیونکہ کوٹلی تحصیل تھی، ضلع ہمارا میرپور تھا، تو لوگ تاریخوں پر یہاں ایک دن پہلے آیا کرتے تھے، کیونکہ سڑکیں نہیں تھیں، سہولت نہیں تھی۔ لوگ رات کو آ کے یہاں قیام کرتے تھے، صبح تاریخ ہوتی تھی، پھر وہ کھانا کھا کر یہاں سے چلے جاتے تھے لوگ۔ تو اس میں یہ تھا کہ کسی کے پاس، وہ غریب پرور تھے، کسی کے پاس کچھ ہوا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو اسے کرایہ بھی اپنے سے دیتے تھے کہ جو جب ہوئے تو دے دینا، نہیں ہوئے تو کوئی نہیں۔ آپ کے والدین اگر اجازت چاہیں تو پوچھ لوں کہ وہ ہندو مذہب کے تھے؟ میرے والد جو تھے وہ ہندو تھے، میرے نانا جو تھے وہ مسلم تھے۔ کہاں سے ہجرت کی آپ کے والد نے؟ میرے والد نے رجوری جموں کشمیر سے بلونگ کرتے ہیں۔ کبھی گئے اپنے باپ دادا کی جگہ؟ میں والد صاحب کے ساتھ 2007 میں ان کے ساتھ 33 نوٹ کراسنگ پوائنٹ سے رجوری میں گیا۔ جب والد صاحب اپنے آبائی گھر گئے تو یقیناً روئے ہوں گے۔ سر وہاں کی میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں۔ میرے والد اس سے پہلے 1985 میں بھی گئے واگا بارڈر سے، دوسری بار ہم لوگ 2007 میں ان کے ساتھ میں گیا، تو وہاں کے لوگ انہیں مذہب کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا، سب لوگ محبت کرتے ہیں۔ وہ کون سا واقعہ تھا جب آپ کے والد اور ان کے 2 اور بھائی ہجرت کر کے یہاں آ رہے تھے تو وہ گم ہو گئے؟
उस वक़्त ये हिंदुस्तान था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। 47 की जंग में ये लोग हिजरत करके यहाँ आ गए। अगर वो आपके वालिद और उनके दो भाई ना आपस में बिछड़ते हिजरत के दौरान, तो आज आप इस कुर्सी पे ना होते। शायद ऐसा ही था, ये अल्लाह को कुछ और मंजूर था, क्योंकि मेरे नाना अबू के पास 2 बेटियां थी, एक मेरी वालदा और एक मेरी खाला। और खाला के 2 बेटियां और 2 बेटे हैं, वो भी इंग्लैंड में रहते हैं। तो हमारी वालदा से हम जो हैं, हम 4 भाई हैं और 1 बहन है हमारी। एक बहन है। जब आपके वालिद और चचा बिछड़े तो किसी ने उनको बताया, जब वो वहाँ गए मकबूजा कश्मीर तो इनको मिले, तो इन्होंने आपके नाना ने आपके वालिद की परवरिश की? मेरे नाना ने परवरिश की, और मेरी नानी मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने, उनके घर बेटा नहीं था, उन लोगों ने मेरे बाप को बेटा बना के यहाँ तक कि हमें अब जहाँ बैठे हो जिस छत के नीचे, ये उन्हीं की हैं सब चीज़ें। और बेटा बना के, जिनकी सिर्फ 2 बेटियां थी, अपनी एक बेटी भी उस बेटे को दे दी। ऐसे ही, और बेटे ने भी बेटा बन कर दिखाया। ये मैं नहीं कहूँगा, आप लोगों से जाके पूछें कि शेख अब्दुल अजीज़ मरहूम क्या थे, राजा गुलाम हुसैन ने उनको क्यों अपना बेटा बनाया, क्यों उनको अपनी बेटी दी, क्यों आपको उनको उनकी अपनी जायदाद दी, अपना नाम दिया, वालदियत दी। यहाँ मुश्किल था उस दौर में। ज़िला कोटली पूरे में आप होंडास के मालिक हैं? जी, हम इससे पहले यामाहा का काम करते थे। 22 साल हमने वो काम किया, और 2008 में उनका एग्रीमेंट ख़त्म हुआ, तो फिर हम होंडा में आ गए। आपके बगैर कोई होंडा मोटरसाइकिल नहीं बेच सकता यहाँ पर एक दूसरे साथी भी हैं हमारे, यहाँ 2 डीलर हैं, एक हम हैं, एक वो नीचे है। वो है। आप एक भाई ऐसे ठहरे कि जिनको यूरोप अच्छा ना लगा और वापस आ गए? शायद मेरे वालिद साहब ऐसे थे ना, कि उन्होंने मेरी परवरिश ही ऐसे की है कि जब वो बिज़नेस करते थे, जब कोटली तहसील थी और यहाँ से पिंडी तक रोड कच्ची थी, पक्की नहीं थी, कच्ची थी, तो मेरी उम्र 8 और 9 साल की उम्र थी, और मुझे वो पिंडी लेकर जाया करते थे कि बेटा यहाँ से बेकरी का सामान मिलता है, जो हम मटेरियल जिसे हम आकर बेकरी आगे चलाते थे, होटल का सामान कहाँ से ख़रीदना है, घर की चीज़ें कहाँ से ख़रीदनी है। शौर मुझे पैदा हुआ। उस वक्त 1 या 2 बसें जाती थी कोटली से पिंडी, तो पिंडी से ही लियाकत बाग अड्डा हुआ करता था, और वहीं से वही बस रात को कोटली के लिए रवाना होती थी। ठीक। तो लोगों के पास पैसे नहीं होते थे कि वो पिंडी जाके देखें कि पिंडी क्या चीज़ है। तो आप उस वक्त भी देखते थे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे नाना मरहूम की, मेरे नाना सेठ कह सकते हैं, अल्लाह ताला ने उनको दिल का जो है ना बड़े दानी नवाब थे, उन्होंने पैसों से मोहब्बत नहीं की है। यूरोप आपके दिल में मकाम ना बना सका, उसकी वजह मेरे वालिद थे। यहाँ की सियासत, यहाँ के लोकल मसाइल, चैरिटी के काम, चीज़ों में दिलचस्पी और हिस्सा लेते हैं? ये मेरे वालिद साहब की, हमें मस्जिद के बारे में, ये जो हम मोटरसाइकिल बेचते हैं, इनमें हमारा मस्जिद का शेयर है। हर मोटरसाइकिल में मस्जिद में हमारा शेयर है। ये हमारा कमाल नहीं है, हमारे बाप ने हमें ये सिखाया कि बेटा ये अल्लाह की राह में भी ये काम करना है। अल्लाह के साथ तजारत करते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे ही है। कभी कोई मुश्किल पेश आई हो और ज़िंदगी में सोचा हो फिर हॉलैंड चलता हूँ? बहुत बार सोचता हूँ। एक बार मैं गया हूँ, 2006 की बात करता हूँ आपसे। मेरे बहनोई थे, उनको कैंसर हुआ, उनका वहाँ ऑपरेट हुआ, मैं चला गया वहाँ पर। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, मुझे ऐसे लग रहा था कि वो उधर से कोई चीज़ मुझे बुला रही है, आवाज़ आ रही है मुझे। मैं उसमें जाके सेन में स्कूल में बैठ के मैं देखता, पानी की तरफ देखता, छोटी छोटी कनाल, नहरें वहाँ पर, ग्रीनरी है जहाँ मैं फुटबॉल खेलता था। फिर मैं सोचता था यहाँ बर्फ़ पड़ती थी, तो बर्फ़ में भी मैं फुटबॉल खेलता था। क्रेज़ था, उम्र कम थी, मज़ा आ रहा था क्योंकि जिस्म गर्म हो जाता है। तो फिर मैं सोचता ये मुझे बुला क्यों रही है ये जगह, क्योंकि मैंने वहाँ ज़िंदगी का कुछ अरसा गुजारा, तो मुझे वहाँ से बहुत मोहब्बत मिली है। बहुत मोहब्बत मिली है। यहाँ रह के भी ख्वाहिशें भी पूरी होती हैं, जायज़ अगर हों। पुरसकून ज़िंदगी समझते हैं पाकिस्तान में रह के कारोबार कर? यहाँ बहुत अच्छा मुल्क है हमारा, बिज़नेस भी बहुत अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही है कि हम कर क्या रहे हैं। मैंने देखा कि इंग्लैंड में पूरे शहर हैं हमारे मीरपुर के लोगों के, चकसवारी, डडियाल, सुमानी के, उनकी तीसरी या चौथी नस्ल है मेरे ख्याल में, अभी चौथी नस्ल है। 3 तो चली गई हैं, अल्लाह के हवाले हो गई हैं। बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, लेकिन अंदर वो कुछ और ही रह रहा है। वीराने क्या, कुत्ते रह रहे हैं, जंगल रह रहे हैं।
चंगड़ क्या सब कुछ रह रहा है, ये हकीकत है। कोठी करोड़ रुपए की बना के एक मुलाजिम रखा हुआ है उसको संभालने के लिए, उसको तनख्वाह भी दे रहे हैं, उसकी फैमिली भी रह रही है। उसके बदले में अगर वो 10% उसका लगा देते, किसी गरीब को मकान बना देते तो जन्नत में घर बनता। सर ये देखें ना, मैं अख्तर साहब का नाम लूँगा, करोट वाले, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और सेहत दे। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा यतीम खाना बनाया। सर मैं देखता हूँ जब उनको ना, तो मेरे दिल में उनके लिए दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसे बना दे। मैं उनको ज़रूर ये बात बताऊंगा। क्यों नहीं, ये पहुँचाएँ उनकी। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ख्वाहिश थी कि लोगों को दिखाएं कि यूरोप छोड़ के पाकिस्तान में भी इंसान कामयाब हो सकता है, और ये एक हकीकत है। ये आपके सामने मेरी एक शॉप नहीं है, मेरी क्रेटे में भी शॉप है, क्रेटा शहर में भी, वहाँ भी उड़ान एजेंसी और कोटली में भी है। अल्लाह के नियमतों से माला माल है, अपने मुल्क की तरफ लौटें, अपनी इज़्ज़तों को बचाएं। मेरा पैगाम है यूरोप वालों के लिए कि मैं 12 साल की उम्र में अगर गया हूँ तो अब मेरी उम्र 60 साल के करीब है। मैं 5 बच्चों का बाप हूँ। अब मेरे आगे 2 नस्ल, तीसरी नस्ल आ रही है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप रह लें, सूखी जैसी भी रोटी मिलती है आप खा लें, इज़्ज़त से खा लें, अपनी नस्लों को बचाएं, सेव करें। सब कुछ दौलत नहीं है। मैंने बूढ़ों को देखा है कि इंग्लैंड के कुछ ऐसे टाउन हैं जहाँ पर उनको कार्ड लगा हुआ है, यहाँ पर उनका मतलब एड्रेस लिखा हुआ है, फ़ोटो लगी है कि ये बुज़ुर्ग फलां जगह रहते हैं। सुबह निकल जाते हैं, वो टाइम पास करते हैं। अगर रात कहीं गिर गए, नशे में हैं या नहीं हैं, ऐसे भी हैं, उनको वो पुलिस वाले उठा के उनके घर तक छोड़ आते हैं। ये कोई ज़िंदगी तो नहीं है। ये इतना लेंथी सब्जेक्ट है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आप मेहरबानी जो आप मेरे पास आए। अल्लाह आपको इसका अजर दे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।